Okay, I will start the class. Okay, audible, na? Yes, sir. Okay. Okay, I think yesterday we started with this concept, correct? That is how to resolve the single force into two perpendicular components. If there is a force P, so then we need to resolve that force into two components, two perpendicular components. So one with horizontal axis, another with vertical axis. And somehow that particular force is making angle theta with respect to x-axis. So the two components, तो एक सिंगल p को दो component में आप divide करोगे, one horizontal component become p cos theta, and I have taken cos theta because theta is making with respect to x-axis. So if theta is making with respect to x-axis, so x-axis becomes cos theta. If theta is making with respect to y-axis, you can see here in this example. So theta is with respect to y-axis, so y-axis become cos theta. Okay? And one more important point I told, if the force is in this engineering mechanics, you remember for entire 4 units, all the 4 units. So we are going to keep one sign convention. Okay? That is, if the force, one second. If the force is going right side and upwards, so we are going to consider it as positive sign. And if the force is going left side and downward direction, so then we are going to consider it as negative sign. Okay, this is our sign convention. So while solving the numericals, you can show that if it is पेपर अगर रिटर्न एग्जाम हुआ तो आप उधर मेंशन करना पड़ता है. ठीक है. So you can see here p cos theta p sin theta. Similarly second quadrant में तो third quadrant में fourth quadrant में ऐसे हम कुछ examples देखा. Correct है? I think even yesterday we saw this one also. So that means if the force is horizontal force. See, हमेशा याद रखो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो. Somebody has to mute. Okay. See, ऑलवेज रिमेंबर, आप एक फोर्स को रिजॉल्व कब करोगे जब वो इंक्लाइन फोर्स है तो. करेक्ट है. सो नॉर्मली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने ड्रॉ किया है, तो दिस फोर्स इज इंक्लाइंड. So then you have to resolve that force into two perpendicular components. One force along x component or horizontal axis, another force component along y axis or vertical component. But in this case, the force itself is in x component or horizontal component. So there is no need for resolution. उसको resolve करने का, not resolution, resolve करने का मतलब chance ही नहीं है. So already there is a force in horizontal component. Obviously, since the force is itself in horizontal component or x-axis, the y-axis becomes 0. So that means y-axis में जो भी component है वो 0 है. That's why I written py is equal to 0. One second. One second. Hello. Then imagine single force is in this second case, the force is itself in the negative x-axis. So you can see here the force is minus pi written. Y component obviously 0. So once again here it is in the positive y-axis. You can see upward is always positive. So you can see x component is 0, but y component is p itself, but a positive sign. See, there is no theta comes into picture in these cases. Okay? Let's see now this is another case. ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स में कैसे भी फोर्स आपको मिल सकता है. सो नाउ इमेजिन देयर इज अ फोर्स P बट in the reverse direction. See, previously the force is going away from the center. You can see that arrowhead direction देख सकते हो, तो वो फोर्स जा रहा था इस डायरेक्शन में, ऐसे जा रहा था. करेक्ट है ना. बट नाउ इन दिस केस, but in this case the force is coming towards like this. ठीक है. So whenever there is a problem like this, what you can do is you can just मतलब
उसको और आगे खींच सकते हो. So that means this force from first quadrant it enters into the third quadrant उसी डायरेक्शन में. You can see here this is force ऐसा था, इसको खींच के इधर लेके आने का. ठीक है, ये फोर्स इधर था तो ये फोर्स को खींच के इधर लेके आने का. ये फोर्स इधर है तो इसको आप इधर लेके आ सकते हो. ठीक है, सो लाइन ऑफ एक्शन रिमेन सेम, करेक्ट ना. फोर्स इधर रहने दो या उसको और आगे खींच के इधर रखो, देयर इज डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, so but you can see here this is what we have done here. I'll clear it up so that it will be easy for you now. So there is a force like this. अभी इसको मैं क्या करने वाला हूं, इसको खींच के इधर लेके आऊंगा. ठीक है, and now we can say this is theta. So if this is theta, this becomes theta. ठीक है, and this is p, obviously this is also p. So now if you see this particular diagram, अगर ये ब्लू कलर वाला देखा तो इट इज नथिंग बट दिस केस, ये केस. You can see here theta is with respect to x-axis, p is in. So obviously the force is in third quadrant. So once again resolve the force into two components. Aram se you can do the into two components. One is x component, another is y component. X component is going left side, so minus, and theta is with respect to x component. That's why this component becomes p cos theta. So I written here. And vertical component become minus p sin theta, because minus is because downward direction पे, and sin theta because theta with respect to x axis है, तो y component becomes sin theta. Similarly with this second quadrant में force है, but towards center आ रहा है, तो it will go to the fourth quadrant. तो fourth quadrant में x component is positive है और y component negative है, and theta is with respect to इधर है, तो obviously आप जब इसको इधर ड्रॉ करोगे तो थीटा ये है, तो थीटा becomes this one. So this becomes x component. So you can say this is, sorry, x component becomes cos theta. Okay, theta is with respect to x axis, and this becomes y component. So similarly you can go for all these things. समझ में आया? Yes, sir. Okay, so this सिंगल पेज जो भी हम कल थोड़ा डिस्कस किया था, आज फिर से थोड़ा रिपीट करके ये एक्सप्लेन किया हूँ. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एमसीक्यू में जो भी क्वेश्चंस आएगा तो सब में रेजोल्यूशन रहेगा. तो आपको वही देखना है कि कॉस थीटा कब लेना है, साइन थीटा कब लेना है, प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है. अगर आप पूछ रहे थे ना एमसीक्यू में somebody was asking कि कैसे क्वेश्चंस आता है, तो इस तरह का क्वेश्चंस आता है. बट कैसे भी क्वेश्चंस आने दो, उसका मेन फंडा यही रहेगा. यू हैव टू रिजॉल्व द फोर्स पैरेललोग्राम के लॉ के फार्मूला के ऊपर, वही क्वेश्चंस रहेगा, सिंपल. ठीक है, सो दिस इज योर बेसिक. ये शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये रहने दो, क्योंकि ये एंगल इधर से दिया है तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा. सो यू रिमेंबर दिस थिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल केसेस ऑफ रेजोल्यूशन. सो नाउ selecting x-axis along the plane and y-axis perpendicular to the plane, we can resolve weight mg into two components when a body is placed on inclined plane. Okay, now we are going to take some. ऐसा नहीं कि always आपको diagram ऐसे ही मिलेगा. There may be a n number of cases. So there may be a block which is placed on the inclined plane. So they may give some forces on this particular plane acting. मतलब एक 4 किलोन्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है, उसको स्टॉप कर रहा है, जो भी है. तो हम, मैंने बोला था ब्लॉक देने दो, ये देने दो, कुछ भी देने दो, हमको कुछ एरोप्लेन देने दो, कार देने दो, बोट देने दो, ह्यूमन बीइंग देने दो, कुछ भी रहने दो. हमको सिर्फ जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा इंटरनल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, यही देखना है. अगर ये फोर्सेस मिल गया तो आपको पता है कि एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, रिजोल्यूशन करना, आगे पैरेललोग्राम जो भी है तो सॉल्व करने का. So now you can see here there is one inclined plane है, there is a block है, and उस block का मास like दिया है mg. ठीक है, x axis along the plane we can resolve the weight mg into two components. So weight दिया है mg, इसको रिजॉल्व करना है. तो अभी प्रॉपर से देखो, this is your x axis,
दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, आप दो तरीके से इसको रिजोल्व कर सकते हो। सो दिस इज वन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब आप कैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लोगे। इन दिस केस आई टेकन एक्स एक्सिस पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। जो इंक्लाइन प्लेन है ना, उसके लिए पैरेलल मैं एक्स एक्सिस लिया हूँ और वाई एक्सिस लिया हूँ। ठीक है, सो देर इज अनदर केस, आई कैन टेक सिंपली लाइक दिस, जो नॉर्मल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, so then mg becomes vertical component, that's it. mg means mg, there is no theta geta comes into picture because this is nothing but आपका x axis y axis ऐसा है और एक फोर्स, वन सेकेंड, एक फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है, दैट्स इट। तो ये हमने ऊपर वाला पेज में देखा था। सो हियर इट इज x component is 0, y component is mg, दैट्स इट। एंड माइनस साइन क्योंकि नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। बट व्हाट वी आर डूइंग इज, ऐसे भी ले सकते हो या you can take, sorry, you can take like this is x axis, this is y axis, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछता है कि you take x axis y axis parallel and perpendicular to the inclined plane, so this is that one, parallel and perpendicular to the this inclined plane के लिए। ठीक है, so now this is your force, ये फोर्स है इधर mg, one second, this is the force mg. So you know you have to resolve the force into two components, so I'm going to resolve that force into two components. One is x component, another one is y component. हमेशा याद रखो, if this is theta, this is also theta, और मैथमेटिकली आप बाद में चेक कर सकते हो। तो ये ट्रायंगल लेके इसको थीटा है तो ये 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा, वो सब चेक कर सकते हैं बाद में। बट जस्ट फॉर रिमेंबर, अगर ये जो भी एंगल दिया है इधर, सो दिस विल बी इक्वल, सो दिस बिकम्स थीटा नाउ। तो आपका एक्स कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा, क्योंकि थीटा इज विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, सो दिस बिकम कॉस, दिस बिकम साइन। So you can see here, I have written here, mg sin theta, mg cos theta, and this is theta. This is how you're going to resolve the weight of that particular block, अगर inclined plane है तो। ठीक है, so जो भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ लास्ट क्लास में, ये सब फंडामेंटल्स है, इसके ऊपर 4 यूनिट आप सीख सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आया, 4 यूनिट समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? So this is how you're going to resolve the force if it is inclined plane. And if you are taking a resolution, you're resolving the force into parallel and whatever the axis you are taking, which are parallel and perpendicular to the inclined plane. ठीक है? One second. So that is one thing. ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस सर। आपके हाथ में होप आपके पास अभी कैलकुलेटर्स है, कैलकुलेटर रखो। यस सर। हाँ, क्योंकि हमेशा याद रखो, अभी नेक्स्ट क्लास से कैलकुलेटर और पेन पेपर नोटबुक रेडी रखो, क्योंकि हम थोड़ा थ्योरी होने के बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही रहेगा, कंटिन्यूस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके। सी नाउ लेट्स सी सम वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स। अभी ये इसका नोट्स वो सब आएगा, डोंट वरी। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ आप लोग ऐसे भी आपके पास नोट्स रहेगा, आप ट्राई करो। ठीक है, चलो विल गो विथ वेरी सिंपल वन, यू ऑलरेडी डन दिस वन। फिर भी सी रिजॉल्व द फोर्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर से पढ़ाई करना है, क्योंकि रिजॉल्व द फोर्स इनटू विच कंपोनेंट्स, वेदर परपेंडिकुलर, पैरेलल परपेंडिकुलर रहना चाहिए या नॉर्मल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहना चाहिए, वो सब क्वेश्चन में दिया रहता है। इसलिए गड़बड़ मत करो, पहले क्वेश्चंस को प्रॉपर रीड करो। ठीक है, चलो रिजॉल्व द फोर्स P along x axis and y axis which are parallel and perpendicular to the inclined plane. So it's clearly giving that you are telling that you resolve the force P into two components, that is along x axis and y axis,
but you should take care that x-axis and y-axis should be parallel and perpendicular to the inclined plane. So now if you can see here, there is एक inclined plane है ऐसा, तो there is one block रखा है और block के ऊपर एक P force act हो रहा है, ठीक है. now इस P block को resolve करना है दो component में, x component, y component, and such a way that x component should be parallel to the inclined plane and y component should be perpendicular to the component. So x component should be parallel to the inclined plane. So this is, you can see here, and y component should be perpendicular to the inclined plane. ये वाला तो इधर लिखा हूं, ठीक है. एंड अब देखो, he has given angle between the horizontal plane and inclined plane is alpha, correct है. and I think he has given this angle is some theta, उसने दे दिया, इधर नहीं लिखा हूं. so this is theta, that's it. आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स है, so now you have to resolve the force into two components. One is along, sorry, I'll change the color. One is along x-axis, another along y-axis. So theta is with respect to x-axis, so this becomes p cos theta and this becomes p sin theta. इधर लिखा हूं देखो, p cos theta, p sin theta. That's it. समझ में आया? सिंपल न्यूमेरिकल है. Let's go for a second. Resolve the weight of the block parallel and perpendicular to the inclined plane. अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल देखा था दूसरे इसमें, सेम एक इंक्लाइन प्लेन है, एक वेट दिया है, मास नहीं दिया है, वेट दिया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स. फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. हाँ, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, बट हियर दे आर गिविंग वेट, ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इधर देखो W दिया है, थीटा मैंने बताया था, सेम पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन. तो दिस इज इंक्लाइन प्लेन है, इसका पैरेलल एंड परपेंडिकुलर में मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा, और वेट फोर्स है इधर, दिस इज वेट फोर्स है, उसका एक्स कंपोनेंट, उसका वाई कंपोनेंट. और मैंने पहले ही बताया था कि दिस इज थीटा, तो आंख बंद करके इसको भी थीटा ले लो, हो गया. थीटा इज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, तो यू कैन सी वाई एक्सिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा. you can directly write W sin theta, ठीक है, W sin theta. So that's it. X component और Y component में मैंने डिवाइड किया या रिजॉल्व किया फोर्स को. नेक्स्ट सिंपल है, वैल्यूज आने के बाद आप लोग करो. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लो. A simple pendulum bob of mass m is hanging as shown in the figure below. Resolve the weight of a bob into tangent and normal component. अभी देखो, पहले कैसा था, इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऐसा दे रहे थे. अभी दे आर आस्किंग tangent and normal. So first you need to understand what is tangent component and what is normal component. Then only you can go for resolving the forces. ठीक है. ओके, एक डायग्राम है, एक पेंडुलम है, तो इधर जाके रुका है और अभी वापस ऐसे आने वाला है, ठीक है. सी हमेशा याद रखो, टेंजेंट इज नथिंग बट विच इज करेक्ट है, परपेंडिकुलर टू योर सर्कम्फरेंस, ऐसा रहता है. दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट दिस वन. सो आपको पता चल गया होगा. सो दिस आर द टेंजेंट एंड नॉर्मल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि टेंजेंट इज टेंजेंशियल. अभी एक कर्व है तो टेंजेंशियल लिखो बोले तो आप लिखते हो ना, समझो एक कर्व ऐसा है, सो टेंजेंट लिखना है इसको बोले तो आप ऐसे ड्रॉ करते हो ना. सो सरफेस के लिए पैरेलल रहेगा और नॉर्मल मीन्स सरफेस के लिए परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी हियर,
So this is tangent component है, this is normal component है. And obviously this is theta, correct है. So देखो ये वर्टिकल है, ये एक्स एक्सिस है, ये, so this is theta. Obviously this, ये mg है ना, you can see here. So if this is theta, obviously this is theta, तो हो गया theta is with respect to y axis, so theta is with respect to normal, so normal component become cos theta and tangential component becomes sin theta. Okay, now question is mass का यूनिट क्या है? kg, kg, मास का यूनिट kg, but I need it has to be in Newton, correct है ना? So that's why I multiplied by g. So Newton में convert होता है, W is equal to m into g, correct है ना formula? So that's why whenever you give, you will get in question सिर्फ mass दे रहा है तो you do multiplied by g. If you are talking about force बात कर रहे हो, you need a force, then obviously it has to be in Newton. So m into g किया तो W is equal to mg, so you'll get the value in Newton. So that's why mass दिया था उसको मैं न्यूटन में कन्वर्ट किया हूँ m into g करके, ठीक है. So you can see mg cos theta, mg sin theta, x component and y component. Clear है? All are just basic examples to understand कि कौन सा सिचुएशन में कैसे रिजॉल्व करना है फोर्स को. लेट्स सी. चलो अभी कैलकुलेटर ले लो. अब देखो, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन. ठीक है, मैंने पहले भी बोला था डायग्राम कैसे भी रहने दो, हमको कुछ लेना देना नहीं. हमको क्या है कि उस डायग्राम में कौन सा फोर्सेस एक्ट हो रहा है. तो अभी वो बता रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन, मतलब जो भी फोर्सेस है उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट हमको बताओ बोल रहा है. तो ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले जो भी इधर है तो उसका एक समझो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, करेक्ट है. उसके बाद फोर्स कंसिडर करेंगे. ओके, पहले कोई तो एक फोर्स लेते हैं, समझो 25 किलो न्यूटन ले रहा हूँ. सो दिस इज द फोर्स. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है फोर्स? fourth quadrant, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट प्लस या माइनस? plus, minus, एक्स कंपोनेंट प्लस या माइनस? plus, plus, प्लस रहता है, करेक्ट है ना. और वाई कंपोनेंट माइनस minus, तो अभी हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला है कि एक्स एंड वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, तो हम उसको अभी रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में. तो एक्स, so I'm going to take, this is x component, this is y component, and theta is 35 degree, correct है ना. so theta 35 है तो ये क्या होता है 25, so 25 cos 35 25 cos 35, 25 cos 35. ये 25 cos होता है या साइन होता है? sin sir. कॉस क्यों नहीं? सर cos Opposite ही है आएगी ना, adjacent नहीं है. बता सर 35 डिग्री को अपोजिट है, वो एडजेसेंट नहीं है. एडजेसेंट का बात ही नहीं, थीटा इज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, करेक्ट है ना. थीटा जो थीटा है इधर 35 वो बन रहा है वाई कंपोनेंट को, तो वाई कंपोनेंट कॉस बनेगा, एक्स कंपोनेंट नहीं, करेक्ट है. दिस इज रॉन्ग, क्लियर है. तो ये गलत है. वन सेकेंड. सो दिस इज रॉन्ग है, तो
आपका 25 साइन 35, इसलिए बोला पहले ही, तो समझ लो, क्योंकि x कंपोनेंट इज साइन है, क्योंकि थीटा x कंपोनेंट से नहीं बन रहा है, y कंपोनेंट से बन रहा है, तो y कंपोनेंट बिकम 25 cos cos 35. 35. ठीक है, you can see somewhere I had done that one, इधर लिखा है, you can see here. X component is 25 sin 35 and y component is 25 cos 35. Okay, x component is plus या minus? Plus. क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब फोर्स राइट साइड में जा रहा है, करेक्ट है ना? हमारा साइन कन्वेंशन के हिसाब से राइट साइड जा रहा है तो फोर्स प्लस है, और डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस है. So this is Minus. positive है, this is negative है. You can see here. Minus. You can see here 25 cos 35, that is y component, I taken minus, and x component that is plus. तो अगर आप 25 sin 35 इसको करो, आपको ये वैल्यू मिलेगा 25 sin 35, that is equal to 14.33 Newton, and 25 cos 35 is 20.4 Newton. Since it is going downward direction, I had taken minus. ठीक है, नेक्स्ट दूसरा फोर्स लेता हूँ, ये वाला 60 किलो न्यूटन. तो इसका भी मैं चाहे तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट लिखेंगे, तो उसका x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, तो उसका x कंपोनेंट रहेगा इस साइड और y कंपोनेंट रहेगा इस साइड, और थीटा कौन से एक्सिस से बन रहा है? y एक्सिस से बन रहा है, तो y कंपोनेंट बनेगा cos और x कंपोनेंट बनेगा sin. तो x कंपोनेंट बताओगे क्या वैल्यू आएगा? बताओगे इधर क्या लिखना है x कंपोनेंट को? 60 sin 20. 60 sin 60 sin 20 plus या minus? minus. Okay, you can see here I written minus here. No need to write here. इधर लिखने का जरूरत नहीं है माइनस. इट इज इंडिकेटिव दैट लेफ्ट साइड जा रहा है, तो कैलकुलेशन करते समय चाहे तो इधर लिखो माइनस. ठीक है, माइनस 60 sin 20, और ये कितना बनेगा? 60 cos 20 प्लस या माइनस? माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इधर भी आप लिख सकते हो माइनस, तो मैंने इधर लिखा हूँ डायरेक्ट. ठीक है, तो 60 sin 20 का वैल्यू आ रहा है 20.52 न्यूटन, और 60 cos 20 का वैल्यू आ रहा है 56.38 न्यूटन. समझ में आया कैसा करते हैं? Yes, sir. ओके, अभी Yes. देखो, देयर इज रिजल्ट, इधर रिजल्टेंट नहीं पूछ रहा है, सिर्फ रिजॉल्व करने के लिए बोल रहा है. इमेजिन हमने एक फार्मूला लिखा था मैंने, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ summation of fx square plus fy square plus summation of fy square. ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा था. सो अब बताता हूँ समेशन ऑफ fx. अभी इस प्रॉब्लम में पूछा कि बाबा तुम रिजल्टेंट फाइंड आउट करो ये दोनों फोर्सेस का, तो हमने सिंगल फोर्स का x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकाला, 60 न्यूटन का भी x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकाला. अभी क्या करना है, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है रिजल्टेंट के लिए. अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक फोर्स का x कंपोनेंट और इसका भी x कंपोनेंट, ये दोनों को इधर लिखना है, समेशन एफ एक्स करना है, और समेशन एफ वाई बोले तो ये दो कंपोनेंट. समझ में आया? इधर डालना है, तो देन यू विल गेट रिजल्टेंट वैल्यू मैग्नीट्यूड. ठीक है, सो ऑब्वियसली समेशन एफएक्स फाइंड आउट करना है. समेशन एफएक्स फाइंड आउट करना बोले तो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू करके रखना है. ठीक है, दैट इज 14.33 माइनस 20.52 जो भी आता है, माइनस 6 पॉइंट माइनस 5 पॉइंट समथिंग जो भी आता है वो, दैट इज नथिंग बट समेशन एफएक्स स्क्वायर और समेशन एफएक्स, नॉट स्क्वायर, समेशन एफएक्स यू सब्स्टिट्यूट करना है. सिमिलरली
minus 20.4 and minus 56.38, that means minus into minus plus हो जाएगा, तो it becomes 76 point something, that is minus 76 point something, तो that is summation YFY is equal to minus 70 something. तो सब्स्टिट्यूट करना है, आगे आएगा, जस्ट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वो हो गया रिजल्टेंट. एंड आई थिंक एंगल के लिए फॉर्मूला दिया था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन FY डिवाइडेड बाय FX, समेशन FY डिवाइडेड बाय FX. तो आपके पास समेशन FY है, उसको इधर सब्स्टिट्यूट करो, FX करो, tan इनवर्स करो, आपको एंगल भी मिल जाएगा, तो आपको इधर रिजल्टेंट मिल जाएगा. ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे. जस्ट अभी बताया कि उस टाइम पे बोला था कि समेशन FX और समेशन FY कैसे फाइंड आउट करता है. ऐसे हर एक फोर्स का x कंपोनेंट निकालोगे, हर एक फोर्स का y कंपोनेंट निकालोगे, तो समझो 10 फोर्स है, 10 फोर्स का सब x कंपोनेंट को आप समेशन करोगे तो वो बन जाएगा समेशन FX, और 10 फोर्स का y कंपोनेंट को ऐड को ये करो समेशन करोगे, वो बन जाएगा समेशन FY, और सब्स्टिट्यूट करो फार्मूला में, यू विल गेट द आंसर्स. ठीक है. अभी देखो इधर सेम 3 फोर्स दिया है, ठीक है, देख सकते हो. फर्स्ट एक फोर्स 100 न्यूटन है, दूसरा 14 न्यूटन है, और दूसरा 50 न्यूटन है. हर एक फोर्स का कुछ एंगल्स है. अगर आप देखा तो एक सेकेंड, पहले मैं x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो जाता है. सॉरी. Now you can see. सर 1 second. हाँ बताओ, आप बताओ. सर वो 60 न्यूटन का फोर्स था ना पहले इसमें. 60. हाँ वो 60 न्यूटन का फोर्स है, उसका एक कंपोनेंट कॉज में लिखना 90 माइनस 20 करके लिखने के बाद भी आंसर सेम आता है क्या सर? मतलब x कंपोनेंट बात कर रहे हो? हाँ सर, इसका x कंपोनेंट अगर हमें कॉज के फॉर्म में लिखना होगा तो हाँ. एंगल 90 माइनस 20, हाँ वो भी आंसर सेम आता है क्या सर? चलेगा, सेम आता है. दैट मीन्स आप, ठीक है, गुड क्वेश्चन. अभी मैं बताता हूँ. मतलब आपका फ्रेंड पूछ रहा है, समझो ये x और y था, ओके, दिस इज 60 डिग्री ऐसा दिया है, सॉरी 60 न्यूटन, और एंगल दिया है इधर 20 डिग्री. तो वो बोल रहा है कि सर समझो मैं इधर x कंपोनेंट लिखूंगा, दैट इज 60 cos, करेक्ट है, या सॉरी 60 sin 90 माइनस 20, करेक्ट है ना? साइन नहीं, सॉरी कॉस लिखोगे, करेक्ट है ना? यही पूछ रहे हो ना? यस सर. हाँ, तो 60 cos 90 माइनस 20, मतलब मेरे को हमेशा x कंपोनेंट cos ही रखता हूँ कंफ्यूजन दूर रखने के लिए. ऑब्वियसली अगर आप इसको cos रख रहे हो तो ये एंगल क्या है, 90 माइनस 20 हो जाएगा. इधर आप 60 sin 90 माइनस 20 वैसा लिख के, सॉरी 20, सिर्फ 20 ऐसा लिख के कर सकते हो, बट आंसर सेम आएगा. ठीक है, अभी 4 मिनट्स बचा है. आई विल जस्ट क्लियर दिस वन. ओके, फर्स्ट x axis, y axis. आई एम टेकिंग 3 फोर्सेस. पहला 100 न्यूटन इधर, दूसरा 40 न्यूटन इधर, और तीसरा 55 न्यूटन इधर. 3 फोर्सेस है. तभी आपको, सॉरी, तीनों फोर्सेस के लिए अभी रिजॉल्व करना है. तो आप क्या कर सकते हो, पहले ब्लू वाला, तो इसका x कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट, करेक्ट है? या मैं थोड़ा कंफ्यूजन ना करना, तो इधर लिख रहा हूँ x कंपोनेंट y कंपोनेंट. सिमिलरली इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट, और इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट.
तो आप देख सकते हो 100 न्यूटन का एक्स कंपोनेंट 100 cos 35, क्योंकि थीटा इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है और राइट साइड जा रहा है, तो थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, एक्स कंपोनेंट इज cos और राइट साइड फोर्स जा रहा है प्लस, सिमिलरली y कंपोनेंट। ऐसे अगर आप तीनों फोर्स के लिए कर सकते हो, ठीक है। एक एक फोर्स 100 न्यूटन लिया, उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, देन 40 न्यूटन लिया, उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, 55 न्यूटन लिया, उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, सबका अलग अलग डायग्राम। 100 न्यूटन के लिए इधर सेपरेट डायग्राम लिखा हूँ, 40 न्यूटन के लिए इधर सेपरेट डायग्राम लिखा हूँ, 50 न्यूटन के लिए भी इधर डायग्राम लिखा हूँ। आप देख सकते हो दिस इज 35 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 35 डिग्री, 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 45 डिग्री और 55 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लिखा हूँ। डन। सो अगर ये 55 है, समझो इसको 35 लिखा आपने और इसको हटा दिया, 35 डिग्री विथ रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस करके इसको एक्स कंपोनेंट को कॉस्ट लिखा, तो आंसर सही आएगा, नो प्रॉब्लम। तो वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, जो दिया है इतना याद रखो, सिंपल। थीटा अगर एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस से थीटा बन रहा है तो एक्स एक्सिस बिकम्स कॉस थीटा, जो एक्सिस से थीटा टच हो रहा है वो एक्सिस कॉस थीटा, ऑपोजिट वाला साइन थीटा। तो ऐसे तीनों का कैलकुलेशन करना है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अभी आप लोगों को ये नोट्स मैं भेजूंगा, और आज ना पक्का 2 जो क्लास मैंने लिया था और ये वाला तीनों यूट्यूब में अपलोड करके आपको लिंक भेजूंगा, प्लस नोट्स भी भेजूंगा। तो आप लोग इधर तक ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, ठीक है, इधर तक कर लो, ठीक है। इसके बाद ये है ना, ये सब मैं बताऊंगा, इधर से सब रिजल्टेंट का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Okay. Yes, sir. ठीक है, चलो। आई होप सब लोगों ने अटेंडेंस दिया है। सर बताओ हेलो सर, बताओ। ये नोट्स भेज दो ना। हाँ, नोट्स नोट्स भेजूंगा ना, नोट्स और वीडियो दोनों लिंक भेजूंगा, ठीक है। चलो बाय।